Okay. So come upon to the ne- next session for operating system, and today we will study about another approach by which we want to synchronize. In the previous class we was using turn variable. Okay, students are joining. Okay, Ashish Kumar Roy and Ranjan Kumar is joining. Okay. Okay, good morning, students. Please inform your classmates to join class as soon as possible. Vipul Kumar is also joining. Inform your classmates to join as soon as possible because we will study today very important topic. Mhm. Rishikesh Chandra is joining. Okay. Rajiv Kumar is joining. And two more people. Sahil Kumar is also joining. Okay, as you know, the scheduled class will start from 8:05. Till then, if you have any kind of query related with the previous session, you can ask your queries. Am I audible to all of you? Right now, 6 students are here. Am I audible to all of you? Ayush Bharti. Yes, student, kindly respond. Okay, we got two response by the chat box. Vipul Kumar and Ashish Kumar. Okay, good. सो हम लोग प्रीवियस क्लास में तनुश्री शर्मा इज ज्वाइनिंग. हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वाज ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज प्रोसेस. बेसिकली जो आईपीसी या सिंक्रोनाइजेशन या कंकरेंसी का क्या मतलब है? वी वांट टू सिंक्रोनाइज एन नंबर ऑफ प्रोसेस इन आवर सिस्टम. But we was first checking that whether it is possible to synchronize at least two processes in the system. And in the previous class we have studied about one mechanism by which we want to we was using a binary semaphore known as turn variable. Okay, and with the help of that we want to synchronize the two process, and we found that it is satisfying the condition that mutual exclusion. Subham Kumar 34. Mutual exclusion is satisfied by with this. Uh, Mutual exclusion will be satisfied by this, but progress was not satisfied. And by minutely checking this method, we came to know that bounded waiting is also not possible. Okay, so this was the crux of previous class, and today we will look into another approach by which we want to check that whether it is possible to synchronize processes or not. Okay, and as I informed you in previous class also, that it is very important topic as for your university examination point of view, and as well as for your competitive examination point of view also. Okay, so it is 8:05. Right now 11 students are here. Okay, so please, all of you, kindly tell me whether you have any kind of problem related with the previous class. Ankit Raj is also joining. Okay.
चलिए, तो ये सबको टर्न मेथड सबको समझ में आ गया होगा। मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया है आपके वीसीएस प्लेटफॉर्म पे, और इवन मनीष कुमार इज आल्सो ज्वाइनिंग एंड वन मोर विपिन कुमार इज आल्सो ज्वाइनिंग। ओके, लेट देम ज्वाइन। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में मैंने ये पूरा डिटेलिंग कर दिया था, ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा आज लग रहा है लेट ज्वाइन कर रहे हैं। पप्पू प्रसाद इज ज्वाइनिंग। Please, student, tell me, do you have any kind of problem related with previous session or not? If you have any kind of problem, please inform me. Suraj Kumar and Abdul Khaliq Raza is joining. Okay, Rahul Kumar Singh is also joining. And one more person, Mithun Kumar is also joining. Prem Prakash Gupta is also joining. मैं थोड़ा आज सेशन इसलिए लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट आज थोड़ा लेट आ रहे हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने 18 लोग हैं, 19 लोग हो गए हैं। आशीष कुमार इज ज्वाइनिंग। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप 19 लोग हैं, सारे लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, कितनों के पास सिस्टम है क्लास ज्वाइन करने के लिए? पप्पू प्रसाद इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। कितने के पास सिस्टम है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके ओके, शुभम, शुभम 1 2 3 कर दिया। Whose mic is open? Mithun Kumar, Priyanshu Kumar is joining. विपुल, साहिल कुमार, रामनाथ, आशीष कुमार। ओके, अच्छा, मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ एक्चुअली कि सब अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही आप क्या करें, क्लासेस अटेंड करें, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। मे भी हो सकता है किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि बारिश वगैरह हो रही है, ये अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है, तो that is acceptable, but try to join classes by your system. Now Simran Kumari is joining. One more important announcement. Okay, चलिए ये announcement मैं later last में करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक 25 स्टूडेंट हो गए हैं, तो आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास ओके वी गॉट सम रिस्पॉन्स। प्रेम प्रकाश गुप्ता रीजन फॉर दिस, मतलब रीजन किस चीज के लिए? रीजन किस चीज के लिए रीजन पूछ रहे हैं प्रेम प्रकाश? लैपटॉप, ओके ओके, लैपटॉप से ओके। अच्छा, वो एक्चुअली डीएसटी का ये गाइडलाइंस आया है कि स्टूडेंट को बोलिए कि दे मस्ट ज्वाइन क्लासेस विद द लैपटॉप और डेस्कटॉप। ओके, इसका डीएसटी का गाइडलाइंस है। अभी हम लोग के लिए उतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस तो नहीं आया, लेकिन पॉलिटेक्निक में अभी मीटिंग हुई थी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सारे फैकल्टीज और डीएसटी ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें डायरेक्टर सर और सेक्रेटरी सर वगैरह बहुत सारे लोग थे। तो उसमें ये गाइडलाइंस दी गई है, तो हम लोग भी ये अब लेके चल रहे हैं कि मे पॉसिबल कि हम लोग को भी बोला जाए कि स्टूडेंट को इस टाइप का इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। और प्रिंसिपल सर की तरफ से भी ये कहा गया है कि स्टूडेंट को ये सब चीज बताया जाए। और ओके, प्रवीण कुमार, आपका ये ऑन है, वीडियो ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ दैट। ओके,
और जिनके पास नहीं है, आई थिंक देर इज अ फंक्शनैलिटी कि आप यू कैन टेक अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो आप जिनके पास, इज इट पॉसिबल टू नो दैट स्टूडेंट जान में? यस यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल प्रेम प्रकाश, इट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज आपको शायद अब जो मैंने क्लासरूम, चलिए कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने में ही थोड़ा टाइम चला जाएगा, बट आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू ताकि आपको बाद में ये सब दिक्कत ना हो। मोहित राज, मोहित राज, ये देखिए, ये मेरा क्लासरूम है जो कि आपको भी दिखता होगा। क्लासरूम तो सारे लोग, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके टीचर्स हैं, टीचर मैं हूं आपका, और मैंने यहाँ लैब अटेंडेंट सर्वेंद्र पंकज, पंकज जी जो आप जानते होंगे कॉलेज में है, वो आपके लैब अटेंडेंट है, लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखेंगे, ठीक है। तो जिस दिन सोमवार और मंगलवार को लैब है, उस दिन पंकज जी आपको इंटरटेन करेंगे आज के बाद से, क्योंकि अब बहुत कंटेंट पढ़ा दिया गया है और लैब अब से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। मतलब इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था और मैंने आपको असाइनमेंट दिया, और यही सब असाइनमेंट जो है ना आपको लैब में परफॉर्म भी करनी है, ठीक है। मैं भी रहूंगा लैब में, बट इट विल बी मेनली हैंडल्ड बाय पंकज जी, ओके। और ये आप देख रहे होंगे तीन, और मैंने तीन लोगों को और इनवाइट किया है, सारे डीएसटी से हैं। ये संजीव सर जो है ये आपके डायरेक्टर हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर का मेल आईडी है, और ये भी कोई सेक्रेटरी ही है, जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी आई थिंक, उनका मेल आईडी है। तो इन लोग को भी अब एज अ टीचर, तो दे विल कम इनटू द क्लासेस आल्सो। ये हो सकता है कि वो किसी दिन क्लास आए और स्टूडेंट को बोले कि आप अपना वेबकैम वगैरह ऑन कीजिए, ठीक है, और दे वांट टू इंटरैक्ट विथ यू, इस टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया गया है पॉलिटेक्निक में। हम लोग होप कर रहे हैं कि हम लोग को भी मिलेगा वही इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट जो कि मैं सोच रहा था लास्ट में मैं ये करूंगा, बट अभी 30 लोग हैं क्लास में, और बाकी जो लोग नहीं आए हैं उनको भी ये चीज इंफॉर्म कर दीजिएगा स्टूडेंट की। मैं बार बार इसीलिए आपको बोला था ये कि डीएसटी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, डीएसटी स्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको अटेंडेंस भी अब ये लोग मंगवा रहे हैं, बहुत सारा चीज मंगाया जा रहा है, डेटा। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का लिंक वगैरह भी एक्टिवेट कर दिया, और ये एट द टाइम जब क्लास होगा आपका, उस समय आपको मिल जाएगा, इस टाइप का आपको क्लास लिंक मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका, अब जो अभी तक मैं इससे ले रहा था आपकी क्लासेस, जूम के हेल्प से ले रहा था, बट अब इंस्ट्रक्शन आया कि आपको नहीं, जूम से नहीं या कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं, आपको गूगल मीट से क्लासेस लेनी है। तो मैंने यहाँ देख रहे होंगे कि आफ्टर मीटिंग, हमारी मीटिंग 1 तारीख को शेड्यूल है, मैंने 2 तारीख से जूम के लिए शेड्यूल कर चुका हूं मैं, कि ऐसे आप क्लिक कीजिएगा, आपका ये इनविटेशन देखिए शेड्यूल किया हुआ है मैंने, 2 जून को सुबह में ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपका देखिएगा, तो 2 जून को, 2 जून, और हाँ, और ये एक चीज और मैं शेयर करता हूं आपके साथ। सभी लोग ध्यान से इन सब चीजों को देखिए, बिकॉज डीएसटी अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, डीएसटी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अब ये देखिए, ये जो लैब यहाँ दिख रहा है ना, इट इज इंटरटेन्ड बाय पंकज सर, उनको इंफॉर्मेशन जा चुका है, पंकज जी ये लैब में इंटरटेन करेंगे, बट मैं भी रहूंगा उस लैब में, तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू, ही विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस लैब। और मैं जो मेन क्लासेस है आपका ओएस का, यहाँ दिख रहा होगा ओएस का, ये मेरा ही शेड्यूल है, ठीक है, मैंने पूरा उसमें देख के ये शेड्यूल जो है, तो आपके पास भी रूटीन है ना स्टूडेंट? प्लीज टेल मी, डू यू हैव रूटीन? यस सर। हाँ, तो अब जो रूटीन है ना उसी के अनुसार क्लास लगेगी। यहाँ 9 से 10 बजे का है तो उस दिन 9 से 10 बजे लगेगी। यहाँ 1:30 से है तो इस टाइम जो टाइम है क्लास का, उसी टाइम पे क्लास लगेगी आपसे। और गूगल मीट से क्लास लगेगी, आपको लिंक मिल जाएगा। और इवन गूगल मीट में ये भी है कि आपको आधा घंटा पहले वो आपको अलर्ट मैसेज भी भेज देगा, ठीक है, कि आपकी क्लासेस है।
तो प्लीज इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि लैपटॉप से ही क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, इसलिए क्योंकि दे विल चेक दैट ऑल्सो। इवन हम लोग से अटेंडेंस वगैरह भी अब मंगवाया जा रहा है कि कौन बच्चा कितने दिन प्रेजेंट हो रहा है, ये सब भी अटेंडेंस मंगवाया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कल है 29, ठीक है, कल है 29 और 29 इज सैटरडे। और जब आप अपना रूटीन चेक करेंगे तो सैटरडे में मेरा 9 to 10 क्लास है, तो कल 9 से 10 बजे क्लास लगेगी। और कुछ इंफॉर्मेशन कि आपका कल भी मैं आपका गूगल मीट से ही क्लास लूंगा। आपको लिंक कल सुबह में 6 बजे मिल जाएगा क्लास का, ठीक है। मैं हर दिन शेड्यूल किया हूं कि आपको 6 बजे सुबह सुबह मिल जाए। तो आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा उससे आधा घंटा पहले, इट मींस 8:30 में आपको अलर्ट मैसेज चला जाएगा कि आपका मीटिंग है, ठीक है। मुझे भी आ जाता है कि मीटिंग है। और उसके बाद हम लोग कल से गूगल मीट की तरफ जाएंगे क्लास के लिए। आई एम स्टॉपिंग जूम फ्रॉम राइट हियर राइट नाउ। और ये सारे इंस्ट्रक्शन जो भी है मैं दे रहा हूं, दैट इज गिवन बाय डीएसटी। इवन कल ही मैंने डीएसटी के जो ऑफिशियल्स हैं, यस यस पप्पू, क्लास अब रूटीन के ही हिसाब से होगा। चाहे मैं अभी लॉकडाउन का है, चाहे मैं कॉलेज में रहूं, तब भी आपका रूटीन के हिसाब से ही होगा, ठीक है। सभी को ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा, गूगल मीट पे क्लास होगा, लिंक आपको मिल जाएगा सुबह 6 बजे, और आपका जो क्लास टाइम होगा उससे ज्वाइन कीजिएगा। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ज्वाइन कीजिएगा। और आपकी लैब जो है मंडे ट्यूसडे, उस दिन जनरली मैं करता था, अभी तक क्लासेस ले लेता था, ठीक है। बट अब से क्या होगा, आपका फॉर्मली पंकज जी इंटरटेन करेंगे आपके लैब के लिए, और मैं भी प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है। और किसी भी दिन, मैं ये बात बता दूं, किसी भी दिन मुझे भी नहीं पता होगा कि इस दिन वो लोग आने वाले, वो लोग को क्लास का एक्सेस है मेरा पूरा। मैंने इनवाइट कर दिया, वो जैसे ही क्लास ज्वाइन करेंगे दे विल आल्सो बिकम द फैकल्टी देयर आल्सो। और तो उनको भी सारा ये इंफॉर्मेशन शेयर होगा, लिंक वगैरह शेयर होगा, और वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सकता है किसी भी टाइम वो आपको बोल सकते हैं कि आप अपना लैपटॉप ये कैमरा ऑन कीजिए या दिस ऑन कीजिए। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आया हो? यस स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड। ऑल क्लियर। और पप्पू, ये आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज यू आर सीआर ऑफ दिस क्लास, प्लीज कन्वे माय मैसेज टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, ठीक है। आपका जो अपना ग्रुप होगा उस पे आप ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दीजिएगा कि अब लिंक आपको तो मैं पहले ही दे ही दूंगा। और सभी लोग गूगल क्लास में ज्वाइन है ना, ऐसा ना हो कि बाद में वो लोग ये भी बात बोले। 68 लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, देखिए 68 यहाँ पे हैं, और मुझे जो डेटा मिला है उसके अनुसार 72 स्टूडेंट हैं। पप्पू आर यू देयर? पप्पू आर यू देयर? ओके, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे वो ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दीजिएगा कि 4 लोग जो नहीं है वो जल्दी से जल्दी गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में विद द हेल्प ऑफ टर्न वेरिएबल हमने क्या किया था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखा था कि वेदर वी आर एबल टू
synchronize this system or not? Yes, please tell me how many of you are here right now. Please respond. आप respond कीजिए तो 30 लोग हैं यहाँ पे. क्या चले गए सिस्टम ऑन करके या फिर क्या क्या रिस्पॉन्ड कीजिए तो चैट बॉक्स से कितने लोग हैं? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 लोग का रिस्पॉन्स मिला है. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ओके 28. 2 लोग हो सकता है 29. अच्छा, 1 लोग अभी भी मिस. ओके 30 हो गया. चलिए, प्रिया सुमन क्लास ज्वाइन कर रही हैं. चलिए, तो आई थिंक आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल चुका है. अपने क्लासमेट्स को भी ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दीजिएगा. चलिए, तो अब हम नया मेथड देखते हैं. और यहाँ भी चूंकि हम अभी यही देखना चाह रहे हैं कि क्या हम मिनिमम 2 प्रोसेस को क्या हम सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रोसेस सिस्टम है ये. और यहाँ पे प्रीवियसली हमने क्या किया था, एक स्पेशल वेरिएबल टर्न को यूज किया था जिसको हम 0 या 1 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे. अब ये जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म में हम एक अरे है फ्लैग नाम का उसको यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? तो 2 प्रोसेस हैं. तो फ्लैग का साइज क्या है? फ्लैग अरे का साइज भी 2 है. ओके. 0th लोकेशन पे रिलेटेड विथ इंफॉर्मेशन ऑफ P0 स्टोर करेंगे और आप 1 पे P1 से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करेंगे. ओके. तो ये फ्लैग वेरिएबल के हेल्प से फ्लैग एक अरे हम बना रहे हैं. उसके हेल्प से हम चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज 2 प्रोसेस और नॉट यूजिंग फ्लैग वेरिएबल. तो आज का फर्स्ट टॉपिक है यूजिंग फ्लैग वेरिएबल सिंक्रोनाइज 2 प्रोसेस सिस्टम. ओके. नाउ तो आपका ये जो फ्लैग अरे है, इस फ्लैग अरे में 0 और 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. और ये रहा. अच्छा, ये तो सब जानते होंगे कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपका कंडीशन क्या क्या होना चाहिए. आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? प्रोग्रेस होना चाहिए. ये 2 आपकी इसेंशियल हैं. और बाउंडेड वेट होना चाहिए. ये आपका क्या है? ऑप्शनल है. ठीक है. तो ये 2 कंडीशन तो मीट होनी चाहिए. तो इनिशियल में देखते हैं कि आपका क्या है, दोनों का वैल्यू. अब जो फ्लैग वेरिएबल है ना, यहाँ पे बाइनरी वैल्यू ले रहा है. आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो इनिशियलाइज करते हैं हम दोनों को ही फॉल्स से, क्योंकि शुरू में कोई वैल्यू है नहीं. तो दोनों को हमने फॉल्स से इनिशियलाइज किया. अब देखिए, सिंपल प्रोसेस ये क्या है उसको हम देखते हैं. P0 के लिए ये कोड है. तो P0 अपना वर्क कर रहा है. अब चाह रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो. वाइल 1 का ये क्या कहने का मतलब है कि दिस इज अ काइंड ऑफ इनफिनाइट लूप. ओके. जहां भी समझ में नहीं आए प्लीज लेट मी नो, बिकॉज ये भी आपका थोड़ा क्या होगा, लेंदी है. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. वाइल 1 मतलब ये इनफिनाइट लूप है, ये बार बार उसमें जा सकता है. ठीक है. अब क्या होगा, जाते के साथ क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 0 क्या कर देगा, ट्रू कर देगा. तो फ्लैग 0 की वैल्यू फॉल्स से हो जाएगी. मैं दूसरे कलर को यूज कर लेता हूं. फॉल्स से हो जाएगी ट्रू. अब इसने कर लिया ट्रू. अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन, वाइल फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू. वाइल फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू. तो कंडीशन क्या हुआ, मुझे बताइए, कंडीशन क्या हुआ. ये कंडीशन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ. ये हो गया फॉल्स. वेरी गुड.
तो फॉल्स हुआ तो ये क्या करेगा, बिजी वेट नहीं करेगा। ट्रू रहता तब तो बिजी वेट करता ना। वाइल के बाद यहाँ पे क्या है, बिजी वेट के लिए हमने सेमी कॉलन लगाया है, तो ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है, नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में वर्क करेगा। फिर अब एग्जिट, तो ये हो गया आपका क्या, इट इज लाइक एंट्री सेक्शन, इट इज अ एंट्री सेक्शन एंड दिस इज एग्जिट सेक्शन। ओके, ये हो गया आपका एग्जिट सेक्शन। ओके, तो दिस इज एग्जिट सेक्शन। और एग्जिट करने से पहले क्या करेगा, फ्लैग ऑफ जीरो को ये फिर से क्या कर देगा, ट्रू से फॉल्स कर देगा। अब देखिए, अब अगर हमारा नाउ नाउ स्मृति रूप में ज्वाइनिंग, नाउ अगर हमारा P1 एंटर करना चाहता है सिस्टम में, ठीक है, तो क्या P1 एंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो हम देखते हैं। तो while 1 अंदर जाओ, अब ये क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू कर देगा। तो फॉल्स था तो इसको क्या कर देगा, ट्रू कर दिया। अब फिर से वही फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या कंडीशन फिर से क्या है, क्योंकि फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, अब फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होने से क्या हो जाएगा, ये इससे लूप से बाहर चला जाएगा। अब क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में है, अपना वर्क किया, क्रिटिकल सेक्शन में वर्क करने के बाद क्या हुआ, वो एग्जिट सेक्शन में चला जाएगा। एग्जिट सेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू फॉल्स कर देगा। तो ट्रू से क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर से अगर अब प्रीवियस में हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि हमारा जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया था यूजिंग द टर्न वेरिएबल, वहां क्या प्रॉब्लम ऑकर हो रहा था, वहां मेन प्रॉब्लम ऑकर हो रहा था, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन हो रहा था, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन हो रहा था, है कि नहीं स्टूडेंट। मतलब पहले 0 रन करेगा, फिर 1 को ही रन करना पड़ेगा, फिर 0 रन करेगा, फिर 1 को रन करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि क्या यहां पे भी स्ट्रिक्ट अल्टरेशन है क्या, तो देखते हैं। तो हमने देखा कि P0 रन किया, उसके बाद आप चाहे तो P1 को रन कराइए। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम इनिशियल में जो हमने P0 को रन करवाया था, ठीक है, P0 को रन करवाया था, और उसके बाद हम फिर से देखना चाहते हैं कि क्या फिर से पॉसिबल है कि P0 रन करे। मतलब एक बार P0 रन किया, उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से चाहता है कि P0 रन करे। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है, इट मीन 0 रन किया, अब हम चाहते हैं कि फिर से 0 रन करे। तो देखिए इनिशियल में क्या था हमारा, इनिशियल में फिर से वही बात कि आपका फ्लैग था जिसमें 0th पे भी 1 था, 0th पे रन हुआ तो पहले ये ट्रू किया, ट्रू में एग्जिट सेक्शन में निकलने के बाद क्या कर दिया, फिर से इसको फॉल्स कर दिया, और ये तो पहले से फॉल्स था ही। ठीक है, 1, दिस इज अ फ्लैग अरे। ओके, नाउ कम अपॉन टू दैट कि क्या स्ट्रिक्ट अल्टरेशन है। तो अब देखिए क्या फिर से P0 एंटर कर सकता है, तो while 1 ये ट्रू है, तो आप एंटर कीजिए। अब क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 0 फिर से ये क्या करेगा, फॉल्स से क्या कर देगा, ट्रू कर दिया। अब इसने ट्रू कर दिया, अब ये कंडीशन चेक करेगा, while फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या है, फ्लैग ऑफ 1 की तो वैल्यू फॉल्स है ना, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो क्या होगा, ये इस लूप से बाहर चला जाएगा, तो फिर से ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तो जो स्ट्रिक्ट अल्टरेशन था वो हो गया खत्म, क्योंकि 0 के बाद फिर से प्रोसेस 0 चाहे कि हम एंटर करें तो वो कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट अल्टरेशन हो गया खत्म। तो इट मींस कि दो प्रोसेस अभी तक हमने ये पाया कि जो हमारा प्रीवियस टर्न वेरिएबल के कारण प्रॉब्लम था स्ट्रिक्ट अल्टरेशन का, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। नाउ कम अपॉन टू दैट whether the mutual exclusion condition will be satisfied or not.
तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर रिसोर्स हमारा फ्री नहीं है तो क्या होगा कि the process which want to enter this in the critical section but resource is not free, they will have to wait. They will have to wait. They will come upon to the situation कि I will wait. Okay, you can do your processing. Okay, तो चलिए देखते हैं. तो क्या हुआ कि अब हमारा जो प्रोसेस 0 क्रिटिकल सेक्शन में है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल कब होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा. तो ये क्रिटिकल सेक्शन में है और यहां पे हो गया बेचारा इंटरप्ट, आ गया इंटरप्ट. इंटरप्ट हो जाने के कारण क्या हुआ? अब हम बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि क्या हम P1 को भी उस समय एंटर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं. तो जब देखिए ये जब बात हम कर रहे हैं तो उस समय कंडीशन क्या होगी उसको भी देख लेते हैं. कंडीशन क्या होगी? आपका रहा होगा ये वैल्यू फॉल्स, ये वैल्यू इनिशियल में फॉल्स रहा होगा. जब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रहा होगा तो उसने क्या किया होगा? यहाँ पे ट्रू कर दिया होगा इसका वैल्यू. तो ट्रू ये हो गया होगा. ठीक है, ट्रू हो गया होगा. फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू होगी, 1 की वैल्यू फॉल्स है. तो अब हो गया इंटरप्ट. इंटरप्ट होने के कारण आ गया इसके अंदर में. अब हम इसको भी एंटर करवाना चाह रहे हैं. पॉसिबल है या नहीं है वो देख लो. तो फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू. तो ये क्या किया? अपना वैल्यू को कर दिया ट्रू. ओके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट. क्या अभी तक किसी को डाउट है? यस, 32 स्टूडेंट आर हियर, प्लीज रिस्पॉन्ड. क्या किसी को डाउट है? चलिए, एक रिस्पॉन्स मिला, 2 3. ओके, प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिए, सो मत जाइए. ठीक है, तो ये क्या किया? ये अपना वैल्यू भी कर दिया ट्रू. अब ट्रू कर दिया तो नेक्स्ट क्या है? व्हाइल फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू. तो अब देखिए फ्लैग ऑफ 0 क्या है? ट्रू है. तो ये कंडीशन अब फॉल्स ना होकर के ये कंडीशन है ट्रू. तो ट्रू है तो क्या होगा? ये बिजी वेट करता रहेगा, बिजी वेट करता रहेगा. अब बेचारा इंटरप्ट कर दिया फिर भी बिजी वेट कर रहा है. तो क्रिटिकल सेक्शन में इसको अलाउ नहीं किया गया कि तुम एंटर कर सको, बिकॉज द एंट्री सेक्शन हैज ब्लॉक दैट प्रोसेस. ओके, तो अब देखते हैं कि इसको कर दिया ब्लॉक. अब ब्लॉक कर देने के कारण क्या हुआ कि अब कुछ देर बाद ये अपना इंटरप्ट को छोड़ देगा. अब बोलेगा कि मैं म्यूचुअली एक्सक्लूड हो जाता हूं, मेरी सहमति है कि मैं बाहर चला जाता हूं, मैं वेट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये क्या कर दिया? फिर से स्विच ओवर कर दिया अब इसको. ठीक है, स्विच ओवर कर दिया तो ये अपना क्रिटिकल सेक्शन में जो भी काम था, जहां पे इंटरप्ट हुआ था, वहां से फिर से स्टार्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन पूरा रन करेगा और फिर क्या होगा? एग्जिट सेक्शन में जाएगा और अब क्या करेगा? फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू कर देगा फॉल्स. फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू कर देगा फॉल्स. तो अब जो यहां पे ये विजी वेट कर रहा था ना, विजी वेट कर रहा था, अब इसको पता चलेगा कि ये कंडीशन क्या हो गया है? अब हो गया फॉल्स, बिकॉज फ्लैग ऑफ 0 इज नॉट ट्रू. तो ये हो गया फॉल्स. तो अब ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है. तो यहां पे क्या हुआ कि एक समय पे 2 प्रोसेस कभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं मिले, तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन हो गया ट्रू. नाउ म्यूचुअल एक्सक्लूजन में प्रॉब्लम है इसमें क्या? नो. ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोग्रेस. तो प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनिशियली रिसोर्स हमारा फ्री होना चाहिए. तो आप इनिशियल में हम लोग क्या करते हैं? इनिशियल में आपका जो फ्लैग अरे होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम फॉल्स से इनिशियलाइज ही करते हैं. तो इससे क्या होगा? इनिशियली रिसोर्स रहेगा फ्री. चाहे तो P0 एंटर कर सकता है, चाहे तो P1 एंटर कर सकता है. मैं एक्सप्लेन इसको पहले ही कर चुका हूं. नेक्स्ट फिर क्या है कि अगर कोई प्रोसेस बाहर है क्रिटिकल सेक्शन से,
प्रोग्रेस का ही पार्ट है कि अगर कोई प्रोसेस बाहर है क्रिटिकल सेक्शन से तो वो किसी दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकता है एंटर करने से। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन मेट करता है? तो देखिए कि अगर हमारा ये प्रोसेस बाहर है क्रिटिकल सेक्शन से तो क्या ये दूसरे प्रोसेस को ब्रेक कर सकता है? तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है कि दिस इज नॉट द पार्ट। तो इनिशियल में आपका फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो अब ये P0 है बाहर। अब P1 एंटर करना चाहता है, आसानी से एंटर करेगा, अपना वर्क करेगा, बाहर आ जाएगा। फिर चाहे तो फिर से एंटर कर सकता है, क्योंकि मैं ये चीज बता चुका हूं कि वो क्या करेगा बेसिकली। जब यहां क्या हो रहा है ना, यहां कोई क्रक्स में मैं समझा देता हूं। क्रक्स ये है कि हर एक प्रोसेस, जो प्रोसेस है यहाँ पे दो प्रोसेस, वो ये चेक कर रहा है कि क्या मेरे अपोजिट जो प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, मेरे अपोजिट जो प्रोसेस है क्या उसको इंटरेस्ट है क्रिटिकल सेक्शन में? क्या उसको इंटरेस्ट है क्रिटिकल सेक्शन में जाने? क्या तो अगर हमारा अपोजिट वाला इंटरेस्टेड है ना तो मैं नहीं जाऊंगा क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि मेरा यहां पे जो एंट्री सेक्शन है उस समय कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेट करते रहना पड़ेगा, वेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या तुम जाना चाह रहे हो कि नहीं जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे दूसरा अगर इंटरेस्टेड है तो हम अपने आप को ब्लॉक करेंगे। लेकिन अब देखिए, अगर यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो अभी मैं बता रहा हूं उस पे, अभी आपका क्या हुआ, P0 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है। तो क्या हुआ, अब इसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो ये क्या करेगा, वाइल 0, ये कंडीशन ट्रू है। अब क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये कर दिया ट्रू। अब यहां से हो गया ये इंटरप्ट। ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं समझ में आए तुरंत वहीं पे मुझे रोकिएगा और मैं फिर से समझाऊंगा आपको। तो ये हो गया इंटरप्ट। इंटरप्ट हो गया तो अब देखिए यहां पे P1 क्या प्रोसीड कर सकता है, तो P1 जाएगा वाइल 1 इज इक्वल टू ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर चला गया। अब ये क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू कर देगा, तो ये अपना भी फ्लैग का वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो अब देखिए, अगर ये नेक्स्ट अपना इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वाइल फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया हमारा ट्रू, क्योंकि फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू है। अब फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू है, तो ये क्या करेगा, बिजी वेट करता रहेगा, बिजी वेट करता रहेगा, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाया। अब देखिए क्या हमारा P1 को, P0 को मौका दिया गया, P0 तुम एंटर करने की कोशिश करो, तो P0 भी अपना एंट्री गया चेक करने के लिए, वाइल फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, फिर से ट्रू मिला, तो ये भी क्या करेगा, कंडीशन मीट हुआ तो बिजी वेट करेगा। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी प्रोसेस हमारा सिस्टम में एंटर नहीं कर पाया, तो इसी को कहते हैं कि आपका क्या हो गया, डेड लॉक हो गया, डेड लॉक हो गया। समझ में आया? तो ये प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये हमारा प्रोग्रेस में भी फेल हो गया, क्योंकि जो बाहर है क्रिटिकल सेक्शन से, यहां पे तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है ना, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है अभी, ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है, फिर भी वो दूसरे प्रोसेस को रोक ले रहा है कि नहीं तुम एंटर नहीं कर सकते। तो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाया और साथ ही साथ क्या हो गया, डेडलॉक भी हो गया। लेकिन प्रीवियस हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें डेडलॉक नहीं हो रहा था। डेडलॉक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो हमारा एक ही वेरिएबल था टर्न, उसको हम क्या कर रहे थे, ग्लोबल वो वेरिएबल था, और उसको हम स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे थे, वैल्यू उसको इनिशियलाइज कर दे रहे थे 0 या 1, और उसको एग्जिट सेक्शन में हम क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यू फिर से अपडेट कर रहे थे।
तो क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? ये जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है वो, But sir, we can यस यस, disable the interrupt over here. That is flag 0 is equals to true. Then there would be a no deadlock. how you can disable the interrupt? Interrupt can be only disabled in the privileged mode, which is the kernel mode. And user, while working in a user mode, it is not possible to disable the interrupt. आपको यूजर मोड होता है, कर्नल मोड मैंने आपको बताया है जब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था मैंने। तो वहां पे आप कभी भी आपका यूजर मोड में वर्क करते हो, आप इंटरप्ट को कभी डिसेबल नहीं कर सकते। आपको आपको प्रिविलेज्ड मोड में जाना होगा, विच इज नोन एज कर्नल मोड। ठीक है, Yes, sir. ओके, गेट इट? समझ Yes, में sir. आया? चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं आज का अटेंडेंस फिलअप करने के लिए, और जैसे ही अटेंडेंस फिलअप हो जाए, अभी 32 लोग हैं क्लास में, प्लीज लेट मी नो कि आपका अटेंडेंस फिलअप हो गया है। ओके, जैसे ही आपका हो जाए, प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव एंटर्ड। और कल से हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। लिंक आपको सुबह में ही मिल जाएगा 6 बजे। और क्लास टाइम में क्लासेस होंगी, कल आपका 9 to 10 क्लास है, थोड़ा रूटीन देख लीजिएगा। ओके, 2-3 लोग ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, वेरी गुड। 3 लोगों ने, अब्दुल खलीक ने, प्रेम प्रकाश गुप्ता ने, एंड मनीष कुमार, साहिल कुमार ऑल्सो डन, वेरी गुड। पप्पू प्रसाद, इनका भी हो गया है। ओके, चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चूंकि ओके 2 लोग और रिस्पॉन्ड किए हैं, 3 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, डन। सूरज प्रियदर्शी, रामनाथ कुमार, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अभी तक तो हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिला नहीं जो कि सिंक्रोनाइज कर सके, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आशीष कुमार रॉय, ऋषिकेश चंद्रा एंड सूरज कुमार, दे हैव आल्सो डन, ओके। तो प्रॉब्लम को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप सॉल्यूशन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं पीटरसन सॉल्यूशन की तरफ। और ये भी जो पीटरसन सॉल्यूशन है ना, इट इज फॉर 2 प्रोसेस एंड 1 शेयर्ड रिसोर्स। अभी तक हम यही 2 प्रोसेस में ही उलझे हुए हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया n इज इक्वल टू 2, इट मींस ट्रू प्रोसेस है। और यहाँ पे हम ये डिफाइन करें कि ट्रू का वैल्यू 1 है और फॉल्स का वैल्यू 0 है, ठीक है। ये कुछ डिफाइन किया गया। राजन कुमार इज ऑल्सो डन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा था टर्न वेरिएबल, इसको ग्लोबल है ये वेरिएबल, इसको भी यूज कर रहे हैं। और एज वेल एज हम एक अरे विच इज नोन एज इंटरेस्टेड,
इंटरेस्टेड है या नहीं है, और इसका साइज क्या है, n के बराबर, मतलब कि कितना प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है और n की वैल्यू इसलिए हमने 2 असाइन की है। तो इंटरेस्टेड एक अरे है जो कि 2 लेंथ का है। ओके, तो दिस इज द सम सिनेरियो। तो ये क्या हो गया, ये ग्लोबली हमने अपना कर लिया असाइन। अब आते हैं हम कहां पे, एंट्री सेक्शन में। तो वॉइड एंट्री सेक्शन इंट प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस जो होगा, जैसे कि प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, तो वो अब क्या करेगा, एंटर करना चाहता है इंट अदर। एक हमने अदर नाम का भी वेरिएबल ले लिया है एंट्री सेक्शन के अंदर में। एंट्री सेक्शन के अंदर में इट मींस इट इज अ काइंड ऑफ अ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल है एक अदर करके, उसको हमने क्या किया है, other is equal to 1 minus process, 1 minus process, इट मीन जो प्रोसेस जैसे कि 0 रहेगा तो अदर का क्या वैल्यू हो जाएगा, अदर का वैल्यू हो जाएगा 1, और अगर प्रोसेस रहेगा 1 तो क्या हो जाएगा, अदर का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो अदर वेरिएबल है एक लोकल वेरिएबल है अदर 0 और 1। ये हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीटरसन सॉल्यूशन, याद रखिएगा स्टूडेंट। अच्छा, अटेंडेंस तो फिल कर दिया, तो उसमें आप लोग पीटरसन सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया अदर वेरिएबल। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस, इट मींस इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस जो एंटर करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस, तो हम इनिशियल लेके चल रहे हैं 0 कि इंट प्रोसेस, इट मींस इंट p0 एंटर करना चाह रहा है, तो इंट ऑफ अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अदर की वैल्यू यहां पे हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि 1 माइनस 0 तो इट विल बिकम 1। इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू ट्रू, तो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस 0 है तो उसकी वैल्यू हम क्या कर दिए, ट्रू असाइन कर दिए। ठीक है, एंड टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न इज इक्वल टू कौन सा प्रोसेस है, 0। तो ये हो गया, ये तो सिंपल वेरिएबल को कैसे हम असाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब वाइल इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू ट्रू, अदर क्या वैल्यू है 1, और यहां पे क्या वैल्यू है, इनिशियलाइज कर लेते हैं फॉल्स, सारा फॉल्स ही था, तो ये भी फॉल्स था, इसको हमने यहां पे एंटर किया, तब हम इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू ट्रू किए। while interested of other is equal to true, मतलब अगर हमारा दूसरा जो प्रोसेस है वो है इंटरेस्टेड और उसकी वैल्यू है ट्रू, लेकिन यहां तो वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। एंड अब यहां क्या है, आपका एंड ऑपरेटर है, एंड टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो ये क्या हो गई कंडीशन, ये हो गई ट्रू, क्योंकि टर्न इज इक्वल टू तो प्रोसेस ही है, तो क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब देखिए, अब क्या है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगी रिजल्टेंट, फॉल्स हो जाएगा। आपको एंड ऑपरेटर का पता होगा ना, सिर्फ दोनों पार्ट अगर ट्रू रहता है, बाइनरी ऑपरेटर है तो दोनों पार्ट अगर ट्रू रहता है तभी ट्रू होता है, अगर एक भी पार्ट फॉल्स होगा तो इट विल गिव यू रिजल्ट एज अ फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। तो अब क्या होगा, फॉल्स हो गया तो अब ये चला जाएगा इससे बाहर, इससे बाहर चला जाएगा, लूप में फंसेगा नहीं, तो बाहर चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट है सेमीकोलन, मतलब इस ब्लॉक से एंट्री सेक्शन से बाहर चला गया तो चला गया अब क्या, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर में। अब क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में जैसे ही गया तो अब ये क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद अपना प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा, एग्जिट, एग्जिट सेक्शन में जाएगा, एग्जिट सेक्शन इंट ऑफ प्रोसेस, मतलब उसी प्रोसेस का एग्जिट सेक्शन है, तो ये क्या करेगा, एग्जिट सेक्शन में इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, फिर से ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो भी
क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा वो फिर से एंटर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर P1 एंटर करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, P1 के लिए इंट ऑफ अदर पहले स्टार्ट होगा, तो इंट ऑफ अदर है। अब ये अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1, क्योंकि प्रोसेस 1 एंटर करना चाहता है, तो दिस विल बिकम वैल्यू एज 0। अब क्या हो गया, अदर की वैल्यू हो गई 0, अदर की वैल्यू क्या हो गई 0। ये कुछ वैल्यू है जिसको मैं रेज कर दे रहा हूं, ठीक है, चैट बॉक्स से कुछ है। सर एग्जिट सेक्शन इज अ फंक्शन हु इज कॉलिंग दिस फंक्शन, who is calling this function? Exit section is not calling any kind of function. It is only it is only giving the value of interested array, interested जो हमने array बनाया है ना, उसके प्रोसेस के लोकेशन पे जाकर के उसको वैल्यू असाइन कर रहा है, किसी को कॉल नहीं कर रहा है ये। सर एग्जिट सेक्शन एक फंक्शन है ना? यस यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज सर अ इसे फंक्शन। कॉल कौन कर रहा है? हाँ, इसे कॉल कौन कर रहा है, या मतलब तो कर्नल प्रोसेस कॉल होगा करता वो है? कॉल करेगा ना, जो प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ वही प्रोसेस आपका एग्जिट सेक्शन को भी कॉल करेगा। ओके सर। ओके, चलिए चलिए, तो अब अगर हमारा प्रोसेस 1 एंटर करना चाह रहा है तो प्रोसेस 1 क्या करेगा, सबसे पहले अदर नाम का एक वेरिएबल लेगा, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, तो 1 माइनस प्रोसेस क्या वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 प्रोसेस 1 है। तो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस क्या कर देगा, ये कर देगा ट्रू, तो इंटरेस्टेड जो ऑफ प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, ये हो गया ट्रू। अब देखिए, अब ये जो आएगा अपना मेन कोड के अंदर में, ये टर्न इज इक्वल टू क्या कर देगा प्रोसेस, तो टर्न इज इक्वल टू अब ये क्या कर दिया फिर से, चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो टर्न इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। वाइल इंटरेस्टेड इज इक्वल टू ट्रू, अब इंटरेस्टेड की वैल्यू क्या है, इंटरेस्टेड ऑफ अदर, इंटरेस्टेड ऑफ अदर, ओके सॉरी, इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर मतलब 0, तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या कंडीशन हो गया, क्योंकि इसको ट्रू होना था, अब ये है फॉल्स, तो ये हो गई फॉल्स। टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो ये तो है ट्रू, तो क्या हो गई, फिर से हो जाएगा फॉल्स रिजल्टेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, इस लूप से बाहर चला जाएगा। तो P1 भी एंटर कर सकता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में विदाउट एनी प्रॉब्लम। P1 हो गया एंटर क्रिटिकल सेक्शन में। अब फिर से वही, जब ये एग्जिट करेगा तो क्या करेगा, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू कर देगा फॉल्स। अब चाहे तो P1 चाहे तो P0 फिर से एंटर कर सकता है, तो यहां पे क्या होगा, आपका स्ट्रिक्ट अल्टरेशन नहीं है, सबसे पहली बात स्ट्रिक्ट अल्टरेशन नहीं है। ओके, समझ में आया, सभी को समझ में आया जितना मैंने बताया, पीटरसन सॉल्यूशन में मैंने जितना बताया सभी को समझ में आया। यस स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, एक रिस्पांस, 2 लोगों का रिस्पांस मिला है हमें, अक्षय राज का और शुभम कुमार का, यस सर, यस, आशीष कुमार रॉय का भी रिस्पांस मिल चुका है। ओके, मोहित राज का भी रिस्पांस मिल, सिमरन, मिथुन कुमार, वेरी गुड, अंकित राज, अब रिस्पांस आ रही, स्मृति रूपम। चलिए, तो इट मींस कि इतना तो सबको समझ में आ गया कि ये हमारा वर्किंग मैकेनिज्म है पीटरसन्स का। अभी पीटरसन्स का हमने डाइसेक्शन नहीं किया है, मतलब पूरा चीर फाड़ नहीं किया है, सर्जरी अभी कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि हमको देखना है कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मेरा प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है हमारा पीटरसन्स के साथ, ये हम डायग्नोस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास।
तो जो इंटरेस्टेड होंगे ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में ही आपका ये मॉड्यूल हो जाएगा फिनिश। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपका ये मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं कल at 9 o'clock। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।